اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ تو ابھی تک ہم نے جتنا سیکھا اس کو ہم نے 5 ٹائپ میں تقسیم کیا، اور وہ 5 ٹائپ مبتدا خبر کی. ٹھیک ہے جی. نمبر 1، مبتدا خبر اگر کوشچنیبل ورڈ سے شروع ہوا تو وہ بھی مبتدا خبر ہے. اور ابھی پورا سینٹینس مت بولو، کوشچنیبل ورڈز کتنے آپ نے پڑھے لائن سے ایک ایک گناتے جاؤ. ماں آپ حل اس کا میننگ بھی بولتے جاؤ. کیا ماں کا میننگ کیا کون کیا تو ہے، یا کون کیا بھی ہے، دونوں میں فرق پتہ ہے نا؟ کیا اور حل اور ماں میں کیا فرق ہے؟ حل پہلے ہو رہا ہے از کو حل از اور ماں واٹ. ٹھیک ہے. من مینس کون آئینہ مینس کہاں. اور کوئی ورڈ جو پڑا ہو حروف استفہام میں، کوشچنیبل ورڈ میں، کیونکہ حروف استفہام سے جو بھی سینٹینس شروع ہوگا اس کو مبتدا خبر بولتے ہیں. اور جو وہاں کے لیے ہو گیا حمزہ الف ماں تو ہو گیا. ماذا اس کا مطلب بھی واٹ کیا. ایک اور ہے رہ گیا، حالانکہ اس کا کچھ یہ نہیں، آئینہ بول دیا ہو، لیکن آئینہ کے ساتھ من لگا تو کیسا ہو؟ من آئینہ. کہاں سے تو یہ بھی ایک کوشچنیبل ورڈ جیسا ہے. کہاں سے اتنے بڑے تھے. اب اسماء اشارہ سے کوئی بھی ورڈ شروع ہوا وہ مبتدا خبر ہے. اسماء اشارہ ایک ایک بولیے. اسماء اشارہ پوائنٹ سب کے میننگ وہ یہ حاضی ذالکا وہ تلکا وہ لڑکی بول. ہاں آگے اولائکا وہ سب ہاؤلائی نہیں ہاؤلائی اس میں سے ہاؤلائی یہ سب اولائکا وہ ہاؤلائی ذالکا اور سنگل یہ ہو گئے. اس کے بعد ہم نے پڑھے کوئی بھی سینٹینس اگر شروع ہوگا ڈیٹیچ پروناؤن سے تو پروناؤن ڈیٹیچ پروناؤن آپ غائب کے سنا دو. غائب کے ڈیٹیچ پروناؤن ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. ان سے جو بھی سینٹینس شروع ہوگا مبتدا خبر. ہوا مطلب ہی، ہما تسنیہ آ گیا، ہم جمع آ گیا، تو اگلا سینٹینس بھی جمع ہوگا. سمجھ رہے؟ ہی یا بنت. اب ہما یوز کرنا ہے، ہما بنتان، ہننا بنات. آپ سیکنڈ پرسن حاضر سے سنو. انتا انتما انتم انتی انتما انتنا. ہے نا؟ انت مسلمون، انتما مسلمان، انتم مسلم. پھر انتی مسلمتن، انتما مسلمتان، انتم مسلمات. آپ سنائیے. انا مسلمون نحن مسلمون. تو یہاں سے جو بھی شروع ہوگا ڈیٹیچ پروناؤن سے وہ بھی مبتدا ہوگا. اس کے بعد ہم نے پڑھا پراپر ناؤن سے سلیم جالس، الاستاذ نہیں، عبد الشکور واقف، ایان جالس، ایان طالب، یوسف مہندس. اور لاسٹ والا 5ویں ٹائپ ہے ال سے جو سینٹینس شروع ہوگا، جیسے القلم جدید، الکرسی قدیم، الکتاب جمیل، الاستاذ واقف، الطالب جالس. یہ ال اتنا ہی پڑھا تھا مبتدا خبر. اس کے بعد ہم نے سکھایا آپ کو اٹیچ پروناؤن. اٹیچ پروناؤن بھی سکھایا. اٹیچ پروناؤن کا مطلب کیا ہے کہ یہ اٹیچ پروناؤن کسی بھی ناؤن یا ورب کے لاسٹ میں اٹیچ ہوتے ہیں.
सेम डेटेज प्रोनाउन जैसा इसकी भी गर्दान है। हु क्या है बोलिए? हु हुमा हुम, ही हा हा हुमा हुन्ना, हाँ, फिर की कहाँ का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, फिर या या और नीना, या नीना, हाँ या नीना। या अटैच प्रोनाउन पढ़े। उसके बाद हमने पढ़े प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पढ़े, क्या क्या पढ़े एक एक बोलो। प्रीपोजिशन जल्दी आया। पोजीशन बता। प्रीपोजिशन इन ऑन वगैरह, फॉर फ्रॉम, अला हाँ अला, मीन, अला का अला मतलब क्या है? ऊपर, हाँ एक मीन और, मतलब से, मेन मतलब से, फी में फी में अंदर, हाँ आगे अला वो हो गया। हो गया। कल जो पढ़ी वो फॉग इदा इला, इला 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 रह गया, मेन तो बोल दिया किसी ने। फी, अंदर अला, मिन और इला, मिनल मस्जिद इलल बैत, है ना, ये हो गया। फिर ली, लिए, ली लिए, ये भी पढ़े। और लाली इंदा, इंदा पास, और मा साथ, और अब ऊपर ये फौका बोलिए तहता तहता, इमाम अमामा, अमामा, खलफा खलफा, खल्फा, खलफा, शिमाल शिमाल, यमीन राइट राइट, यमीना, यमीन, शिमाल, फौका तहता, अमामा, खल्फा, यमीना, शिमाल, फौका तहता, अमामा, खल्फा, यमीना, शिमाल। ये भी प्रीपोजिशन में आते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ा उसके बाद हमने? मुजा मुजाफिले कल हमने पढ़ा। अब मुजा मुजाफिले के कुछ सेंटेंस में लिखा रहा हूँ, आप एक एक करके ऑनलाइन जो लोग हैं कोई देखिए। हाँ मैं एक एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपने ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। जो लोग अरबिक लिख सकते हैं वो लिख लो, जो इंग्लिश इसमें लिख सकते हैं वो लिख लो। ये एक सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताइए। किताबुन अंज़लना मुबारकुन, अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। मुबारक। अब एक एक वर्ड का करते जाओ, करो। किताब, किताब ये आपने पढ़ा नहीं जी लेकिन हु पढ़ा है, जी हु पढ़ा, जी, ये वर्ब है, क्या है verb। ये पढ़ा नहीं आपने, हाँ वर्ब है, इसका मतलब है हमने उतारा। जी, किताब हमने उतारा, हु हम, उस पर नहीं, हम, हिज मतलब उसको, किताब हमने उतारा उसको, मतलब किताब हमने उतारा जिसको, जी, समझ रहे हैं? जिस पर नहीं, जिसको, किताब को। अब किताब कोई एक ऐसी किताब, इसका मतलब है जिसको हमने उतारा। आगे अयान आप करो। इला का मतलब क्या है? ऊपर, इला इला इला, तरफ, तरफ, क इलैका क कुमा कुम, उस वो तरफ, नहीं, क का मतलब क तुम पर तुम तुम पर, पर, तेरा, तेरी तेरी तरफ, तेरी तरफ, तेरी तरफ, तेरी तरफ। तरफ। किताब जिसको हमने उतारा तेरी तरफ, मतलब आपकी तरफ, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। मुबारकुन, मुबारक है,
मुबारक। ठीक है, किताब जिसको हमने उतारा आपकी तरफ मुबारक। जी, इसका तर्जुमा आप लिख सकते हैं। जो मुबारक है। हाँ, जी सलीम भाई आप पढ़िए। रज़ी अल्लाहु अन्हुम। अनहुम, रजिया मतलब राजी। राजी, ये आपने पढ़ा नहीं। राजी हुआ पास्ट टेंस है। कौन हुआ? अल्लाह। ठीक है, तो अरबिक में सब्जेक्ट बाद में होता है, इंग्लिश में कैसा होता है? सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में। जैसे लड़का जा रहा है, उर्दू में भी ऐसे है, लड़का जा रहा है या लड़का गया, तो लड़का सब्जेक्ट पहले आ गया, गया ये वर्ब है बाद में आया। अरबिक में वर्ब पहले आता है, गया मतलब राजी हुआ, कौन? अल्लाह। सब्जेक्ट बाद में। सब्जेक्ट की पहचान क्या, उसको पेश आता है। तो राजी हुआ अल्लाह अन हुम। अन का मतलब ये आपने पढ़ा नहीं, प्रीपोजिशन में लिख लो, इसका मतलब भी से। अन का मतलब से। से एक से या सब से? से जैसे फ्रॉम वाला से, फ्रॉम नहीं, से मतलब जैसे एक इंसान से या फिर दोनों तीन के चार लिए से ही इंसान- आएगा। दोनों के लिए से आएगा। दोनों के लिए। अब सब की सब से तब भी अन लगेगा और एक से तब भी अन ही लगेगा, ये जमीर बदलेगा ना। अब एक को बोलना है तो अनहु, अनहु, और ज्यादा है हुम, अनहुम सब। अनहुम, सबके लिए। और आपसे अनका, अनका। हाँ। मुझसे अन्नी, अन्नी। अन्नी, हम सब से अन्ना, हाँ। अनहुमा किससे होगा? वो दोनों से। दोनों से। तो ये अटैच प्रोनाउन है ना, इसका मतलब उन सब, मैंने बताया उन सबको, उन्हें, उनको, ऐसा आएगा। तो यहाँ उन से। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, क्या तर्जुमा है? अल्लाह राजी हुआ उन सब से। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम, ये तो बताया आपको, क्या तर्जुमा होगा? सलामती हो तुम सब पर। तुम सब पर। इंग्लिश में क्या तर्जुमा करेंगे? अल आया सलाम पे, अस्सलाम, क्या तर्जुमा करेंगे इतने का? पीस। अल है ना, दी पीस। द पीस The peace. अलैकुम, तुम सब पर। तो क्या बोलेंगे? अपॉन On you all. अपॉन यू ऑल, है ना, तुम सब पर। द सलाम यानी सलामती हो किस पर? तुम सब पर। वो अस्सलामु अलैकुम का तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। एक और वर्ड जो आप बार बार पढ़ते हो, इसका मीनिंग करेंगे आप करेंगे, इसको पढ़िए देखो। अंजलना का क्या मतलब था? नाजिल होना, उतारना। एक ना, इसको पढ़ते जाइए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राजिऊन। अब ये क्यों लिखा रहा हूँ? प्रीपोजिशन आपने जो पढ़ा ना, उसका इस्तेमाल होगा जहाँ जहाँ उसका तर्जुमा करना है। जो वर्ड आपने नहीं पढ़ा, उसका नहीं आता तो कोई बात नहीं। इन्ना, इसका मतलब है बेशक हम, जी। हम, बेशक हम। ठीक है, आगे करो। लिल्लाहि, इसका आपने करना है, कीजिए। ली का मतलब क्या है? ली हुरूफ इजारा पढ़ेगा। बेशक। से नहीं नहीं, ली 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 ली, देखिए ली का मीनिंग क्या लिखा है? लिए। लिए। हाँ। ली मतलब लिए, ला ली दोनों का मतलब लिए। फॉर, FOR, फॉर। अल्लाह के लिए। तो क्या हो गया? बेशक हम, हमने लिए, बेशक अल्लाह की। बेशक हमने लिया अल्लाह, नहीं नहीं, हम बेशक अल्लाह हम के। लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। इंग्लिश में क्या तर्जुमा करोगे? बेशक हम अल्लाह के लिए। नहीं नहीं, जहाँ ली लगेगा, ली का मतलब फॉर लगेगा, समझो फॉर द मस्जिद, हाँ, क्या तर्जुमा करोगे? फॉर द गॉड। फॉर द गॉड, गॉड, तो क्या तर्जुमा करोगे? करो। फॉर द गॉड ना, हाँ, वही उसका नहीं करो, हिंदी करो ना उसको। अल्लाह के लिए।
अल्लाह के लिए ना, फॉर द गॉड, तो गॉड पहले बोला आपने हिंदी में, यहाँ भी अल्लाह को पहले बोले, लिए पहले मत बोलो। जैसे फिल मस्जिद, क्या तर्जुमा करोगे मस्जिद में, मस्जिद इंग्लिश में? इन द मस्जिद, इन द मस्जिद। अब इसका हिंदी बनाओ, मस्जिद में, मस्जिद में, तो पहले मस्जिद का नाम लिया, में बाद में लाया। सेम ऐसा अरबिक में यहाँ पर के फिल मस्जिदी, मस्जिद में, मैं को बाद में करना। जैसे इंग्लिश में है वैसा, इंग्लिश में जहाँ जैसे प्रीपोजिशन यूज होता है वैसे ही अरबिक में। इंग्लिश में समझो हम मिन का पहले नहीं करते, या इला का पहले नहीं करते, या इन का पहले नहीं करते, या ऑन का पहले नहीं करते, ऑन द मस्जिद, तो हिंदी में क्या करते? अब इस सेंटेंस का मस्जिद के ऊपर, मस्जिद के ऊपर पहले मस्जिद का लेते हैं। तो प्रीपोजिशन जिस पर भी आएगा, पहले जिस पर आया है उस चीज का नाम लो, पहला, हाँ पहले, फिर वो प्रीपोजिशन का तर्जुमा करना जी। तो बेशक हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ये हैं, अल्लाह के लिए हैं। वह इन्ना, ये जो सेम है, और बेशक, और बेशक, और बेशक हम इलैहि, उसकी तरफ, इला का मतलब तरफ, तरफ, ही, उसकी उसकी, तो क्या हो गया? और बेशक हम उसकी तरफ, उसी की तरफ, उसकी तरफ, उसकी तरफ, उसी की तरफ राजिऊन, राजी हो गए, राजी हो, नहीं, रुजू हो जाना, राजिऊन का मतलब है रुजू हो जाना, पलट कर जाने वाले हैं, अच्छा, पलटने वाले, उसी की तरफ पलटने वाले, मतलब वापस होना। राजिऊन का मतलब वापस होना, ठीक है? तो ये देखो आपको समझ में क्या आना चाहिए, सब नहीं, एक ये एक इलैहि, उसी की तरफ, लिल्लाही और इलैहि, ये समझ में आना चाहिए। इसके अंदर देखिए ये समझ में आना, ये वाला आना, उसकी, और ये वाला। अलैका का क्या था एक बार वापस बोलिए। इलैहि का, आपकी तरफ, इला मतलब तरफ, इलैहि का, तेरी तरफ, का हाजिर में आ गया। जी। इसका क्या तर्जुमा करेंगे? ये इन्ना, तो इन्ना बार बार आ रहा है, बेशक, इन्ना बार बार आ रहा है, बेशक, बेशक, इन्ना का मतलब क्या हुआ? बेशक, बेशक, अब इसका कीजिए, बेशक अल्लाह, बेशक अल्लाह। अब ये बाकी कोई नहीं बोलो। महा का मतलब क्या है? महा, महा प्रीपोजिशन में पड़ेगा, साथ, महा विद, साथ, साथ, महा साबिरीन, ठीक है? सब्र करने वाले, क्या करें? बेशक अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। तो ये पढ़ना माँ क्या है? साथ, साथ, विथ, पहले वो पढ़ना है, सब्र करने वालों के साथ। जी, ओके। ये इसका आप यूसुफ भाई आप कीजिए। अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु, हमारे साथ, हाँ, माअना, हमारे साथ, ये माआ, देखो ये ना कैसे हुआ? माहू, क्या तर्जुमा करोगे? उसके साथ, माहुम, उन दोनों सबके साथ, नहीं, माहुमा, दोनों के साथ, माहुम, सबके साथ, माहा, उसके साथ, माहुमा, इन दो लड़कियों के साथ, माहुन्ना, वो सब नहीं, सब लड़कियों, माका, तेरे साथ, माकुमा, तुम दोनों के साथ, माकुम, तुम सबके साथ, माकी, तेरे साथ, तेरे तेरे साथ, साथ, लड़की की तरफ, माकुमा, दो लड़के, तेरे साथ, दोनों के साथ, हाँ, माकुन्ना, तुम सब लड़कियों के सब साथ, लड़कियों के साथ, माई, मेरे साथ, माना, हमारे सब सब साथ, समझ रहे? हमारे साथ, ये वाला समझा? माना, अल्लाहु मआना, इसलिए अटैच प्रोनाउन याद करना बहुत जरूरी है, बार बार आएगा। अगर याद नहीं है तो फिर दिमाग को टेंशन आएगा। हाँ, ये अटैच प्रोनाउन याद करना बहुत जरूरी है। तो क्या हो गया इसका सीधा अल्लाह हम जुमला? सबके साथ, अल्लाह हमारे साथ, अच्छा, अल्लाह माहू मआना, अल्लाहु मआना, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है, नहीं आता ना इसमें, अभी आगे जो है, आया ना? है। अल्लाह हमारे साथ है, सेंटेंस पूरा हो गया, मुक्ता खबर है।
अब ये तो यहाँ तक हो गया आपके प्रीपोजिशन का थोड़ा मैंने आपको प्रैक्टिस दिया। अब मैं ले रहा हूँ मुजाफ इलैह जो कल हमने पढ़ा पुरानी वर्ड से। इधर देखिए और आपने तर्जुमा करना है। कौन सा सेंटेंस है? देख के क्या लगता है? देख के क्या लगता है? नहीं, हाँ, देख के कौन सा सेंटेंस लगता है? दो ही सेंटेंस पढ़े हमने, मुब्तदा खबर और मुजा। अब तक दो ही पढ़ा। मुब्तदा खबर में तो 5 कैटेगरी, 5 तरह के सेंटेंस, ठीक है। और मुजाफ इलैह में एक ही तरीका पढ़ा। आप बता की कौन? ये ना हाँ। मुब्तदा खबर है। मुब्तदा खबर है। हाँ, नहीं, क्या क्या पहचान है? मुजाफ इलैह में तनवीन नहीं होता है, 2 ज़ेर 2 ज़बर। आप मुब्तदा खबर बोल रहे हैं या मुजाफ इलैह बोल रहे मुब्तदा खबर जो मुजाफ इलैह में तनवीन नहीं होता है ना, हैं? हाँ, नहीं होता तो फिर ये मुब्तदा खबर। मुजाफ मैंने नहीं बोला मुजाफ इलैह, सिर्फ मुजाफ को तनवीन नहीं, मुजाफ इलैह को हो सकती है। देखो मुब्तदा खबर में कैसे पढ़े? हुरूफ इस्तिफहाम से शुरू हो, हाँ, नंबर 1। हाँ, नंबर 2 अस्मा इशारा से शुरू हो। नंबर 2 अल से सेंटेंस शुरू हो। नंबर 3 प्रॉपर नाउन से शुरू हो डिटेक्ट और डिटेच प्रोनाउन से शुरू हो, और ठीक है। तो मैंने बताया कि ये सब सेंटेंस मुब्तदा खबर होगा, ठीक। अब यहाँ पे अच्छा उस दूसरा तरीका उसमें क्या था जो बेसिक मैंने समझाया था, पहले हरफ पर अल हो और दूसरे पर अल ना हो। ये मुब्तदा खबर की मोटी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान। पहले हरफ पर अल हो और दूसरे पर अल ना हो। जैसे अल कुर्सियु जदीदुन, द चेयर इज न्यू। अल है पहले पर, दूसरे पर अल नहीं, मुब्तदा खबर। यहाँ जो पहले आया अगर कोई नाउन है उस पर या तो अल होना जरूरी या फिर वो प्रॉपर नाउन होना जरूरी। अब ये कौम क्या है? अल प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन? बोलिए। कॉमन नाउन कॉमन नाउन है ना। कौम बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारी कौमें हैं ना। अब कॉमन नाउन है तो इसका रूल है, इसका मुब्तदा खबर का कॉमन नाउन शुरू आया तो उसको अल होना जरूरी। अब इसको अल नहीं, इसका मतलब मुब्तदा खबर ये नहीं है। नहीं। तो अब बचा क्या? मुजाफ इलैह। अब मुजाफ इलैह की पहचान मैंने क्या बताया? 2 वर्ड हो, पहले पर पेश हो और दूसरे के नीचे जेर हो। दिख रहा है साफ क्लियर? जी। इधर पेश है और इधर ज़ेर। ऐसा, ये बताया था मैंने, निस्बत। ठीक है ना। अब क्या तर्जुमा करेंगे इसका? जब मुजाफ इलैह है तो तर्जुमा किधर से करना है? हूद की कौम, इधर से करना है और बीच में का के की रा रे री लगाना। जी। तो तर्जुमा क्या करेंगे? हूद की कौम, हूद की कौम गैर मुफीद, कौम नूहिन, नूह की कौम, कौम सालिहिन, सालेह की कौम, कौम लूतिन, लूत की कौम, कौम यूनुसिन। यूनुस की कौम। समझ गए? वो जो माना है वो किधर आता है? अटैच प्रोनाउन में कौन सा? आता है? आप उधर चल रहे यहाँ पे। तो वो अटैच प्रोनाउन में आता है कि डिटैच प्रोनाउन में आता है? कौन सा? माना। ये देखो लास्ट में अटैच हुआ, हाँ, लास्ट में अटैच हुआ। Attach। मैंने अटैच प्रोनाउन की पहचान बताया, या तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अटैच होगा या नाउन के लास्ट में अटैच होगा या फिर वर्ब के लास्ट में अटैच होगा। अब ये अटैच है या अलग से आया? अटैच है या नहीं? चिपका हुआ है नहीं? अटैच का मतलब चिपका हुआ है ना, उसके साथ तो वो अटैच हो गया। अब जब वो अटैच हो गया तो इसका तर्जुमा फिर हम पीछे से करेंगे, इधर से हमारे साथ। मैंने बताया था किताबु हु क्या तर्जुमा करेंगे? उसकी किताब। और किताबु का क्या तर्जुमा करेंगे? तेरी किताब। किताबुकुम तुम सबकी किताब। और किताबुहुम उन सबकी किताब। और किताबुना मेरी हम सब की हम सबकी किताब। किताबी। अटैच प्रोनाउन में भी थर्ड पर्सन अलग है, 3 मेल के 3 फीमेल के।
پھر سیکنڈ پرسن کے 3 میل 3 فیمیل. سیکنڈ پرسن مطلب سامنے، تیرا، تم دونوں کا، تم سب کا، تجھ عورت کا، تم 2 عورتوں کا، تم سب عورتوں کا، ایسا تھا. پھر میرا اور ہمارا، یہ اٹیچ پروناؤن. اور ڈیٹیچ پروناؤن میں کیا ہوتا ہے؟ وہ 2، وہ سب، یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، مطلب الگ سے آتا ہے اور یہ سبجیکٹ بنتے ہیں. جو ڈیٹیچ پروناؤن ہے وہ کیا بنتے ہیں؟ سبجیکٹ بنتے ہیں. وہ دونوں، وہ سب، وہ عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں، تو، تم 2، تم سب آدمی، تو ایک عورت، اور تم 2 عورتیں، تم سب عورتیں. جیسے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو، میں، اور نحنو، ہم سب. وہ ہے نحنو، ہم سب، نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان. یہ نا کا مطلب ہے ہمارا یا ہم کو، اٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے. تو مع مطلب ہمارے ساتھ، معا مطلب ساتھ، اور نہ لگ گیا تو ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ. اور معہو ان کے ساتھ، اس کے، اس کے ساتھ. اور معہم ان سب کے ساتھ. آیا ہم نے. اوکے. ابھی میں 2 ورڈ دیتا ہوں، آپ نے مضاف الیہ بنانا ہے. دعوتن ایک ورڈ ہے، دعوت مطلب دعوت دینا. دعوت دینا. اور رسول، 2 ورڈ ہے. آپ کے سامنے 2 ورڈ پڑے، دعوتن اور رسول، یا جیسے بھی الٹا پلٹا رکھا ہوا پڑا، پہلے الرسول ہے پھر دعوت ہے. آپ اس کا مضاف الیہ بنائیں گے تو کیسے کریں گے؟ مضاف الیہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ایک چیز کی نسبت کرنا ہے دوسرے ورڈ کے ساتھ، یعنی دوسرے ناؤن کے ساتھ. یہ مضاف الیہ کا فائدہ ہے، اس کا بینیفٹ ہے. اب یہ فائدہ کرنے کے لیے آپ نے فارمیٹ کیسا رکھنا، اس کا طریقہ کیا ہے آپ بتائیے. دعوتن اور رسول، 2 ورڈ کیسے بنائیں گے؟ الدعوت رسول، الدعوت کیا ہو گیا؟ اللہ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ دعوت. تو ال شروع میں آیا تو مبتدا خبر ہو گیا، اس کا ترجمہ پھر سیدھا ہوگا. مضاف الیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں ترجمہ پیچھے سے ہوتا ہے، ادھر سے پہلے، دوسرے ورڈ سے پہلے ورڈ، اور بیچ میں تا کے کی را رے دی نا نے نی آتا ہے. جیسے انگلش میں کل بتایا وہ ایس وہ والا، اور دوسرا آف، وہ بیچ میں لگتا ہے، اس کو ہی مضاف الیہ بولتے ہیں. اب یہ بولنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے حرف کو ایک پیش دو اور دوسرے کے نیچے زیر رکھ دو. اب 2 زیر کب آئے گا؟ جب وہ پراپر ناؤن ہے، اور ادھر اگر کامن ناؤن ہے تو اس کو ایک زیر آ جائے گا. لیکن زیر کمپلسری کس کو؟ مضاف الیہ، اور مضاف کو ایک پیش. یہ مضاف الیہ بنانے کا طریقہ سمجھو. یہ کرسی ہے اور یہ کرسی مسجد کی ہے، تو آپ کیسے بناؤ؟ اگر آپ کو بولنا ہے کہ مسجد کی کرسی، یہ بولنا ہے. مسجد، ہاں؟ کرسی مسجد. تو مسجد کیا ہے؟ کامن ناؤن یا پراپر ناؤن؟ کامن. تو اس پہ ال لگاؤ، المسجد. بعد میں پہلے کرسی بولو. کرسی المسجد. مسجد دی، ایک زیر، ایک زیر، ال اور تنوین نہیں آئے گی. ال آ گیا تو تنوین نہیں آتی. کرسی المسجدی، کرسی المسجد، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ مسجد کی کرسی. مسجد کی کرسی. اگر آپ کو بولنا ہے کہ کرسی نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، تو آپ کیا بناؤ گے؟ لا کرسی. نہیں، نیو کرسی نیو ہے. دا چیئر از نیو، کیا بنائیں گے؟ الکرسی جدیدی. جدید، دن، جدید. یہاں زیر نہیں آئے گا، یہ مبتدا ہوگا. دا چیئر از نیو، دا ال والا آیا، از نیو، یہاں پہ ال نہیں ہے، ادھر ال ادھر نہیں، تو وہ مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو آف آ گیا یا ایس آ گیا تو وہ پھر مضاف الیہ. اور مضاف میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے ورڈ کو ایک پیش، دوسرے کو زیر. جیسے میں نے بولا اسد کا شرٹ، اسد کا شرٹ، بیچ میں کا لگا تو آپ پہچان لو یہ مضاف الیہ. اسد کا شرٹ یعنی اسد کا قمیص. انگلش میں کیسا بولیں گے؟ اسد شرٹ. شرٹ بعد میں آیا، اس کو پہلے لو. مضاف کا یہی طریقہ ہے. قمیص اسد،
कमीज़ु असदिन। वो प्रॉपर नाउन है, अल नहीं लगेगा। आया समझ में? तो अब दावत और रसूल, अब इसको मुज़ाफ़ बनाओ। अच्छा चलो मैं बोलता हूँ हिंदी, रसूल की दावत बनाओ, ये हिंदी है। दावतु रसूलिन। दावतुर रसूल। और रसूल कॉमन नाउन, अल लगा, दावतुर रसूली, रसूली। ये दावत लिख लो, ये दावतुर रसूली, रसूल की दावतुर रसूली, रसूल की दावत। दावत। ओके, आप बनाओ अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब बनाओ अरबी। किताबुल्लाही, किताबुल्लाही। इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। ओके, अल्लाह का जिक्र आप बनाइए, जिक्रुल्लाह। रहमान का जिक्र आप बनाइए, रहमान का जिक्र, ज़िक्रुर रहमानी। रहमानी। ये कौन सा सेंटेंस है? रहमान का जिक्र, बीच में का आया तो कौन सा सेंटेंस हो गया? मुज़ाफ़ इलैहि या मुज़ाफ़? मुज़ाफ़ इलैहि। यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, ऐसे ही बोलेंगे, है ना? रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। तो जिक्रुर रहमानी या जिक्रुल्लाही, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का फजल बनाइए, फज़लुल्लाही। बहुत अच्छे। अल्लाह की रहमत आप बनाइए, अल्लाह का सलाम, सलामुल्लाही। अल्लाह की इताअत, इताअतुल्लाही। अतीउल्लाह। ये देखिए, इताअतुल्लाही, 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 अल्लाह की इताअत। नबी की इताअत के लिए आप बोलिए, नबीउल्लाह। नबी की इताअत। इताअतुन नबी। इताअतुन नबी। हाँ, जो मैन आदमी रहता है या जो मैन शख्सियत रहती है, इताअतुन नबी। जिसकी तरफ आप निस्बत करते हैं, वो मुज़ाफ़ इलैहि रहता है, उसको बाद में लाइए। और जो चीज़ है या जो भी वर्ड उसकी तरफ निस्बत करना है, उसको पहले लाओ। समझो ये चीज़ है। अब आप अरबिक फॉर्मेशन में समझो ये मेरा है, अब्दुल शकूर का या उस्ताद का। अब मेरे को और इस कलम को आप अरबिक जुमला रखोगे तो पहले किसको रखोगे, मुझे या इसको? कलम को पहले रखिए। इसको रखेंगे, और जिसकी है उसको बाद में। समझ रहे? समझो ये कुर्सी है और ये हॉल की है या ये दफ्तर की है, ऑफिस की है। तो आप पहले किसको रखोगे, इसको या हॉल को? कुर्सी को पहले। कुर्सी। बोल के बताइए, कुर्सियु दफ्तरी। अल लगा दो, दफ्तर। अल दफ्तरी। कुर्सियुल दफ्तरी। कुर्सी युद्ध दफ्तर, अल का साउंड कट है, कुर्सी युद्ध दफ्तर। आया सामने? कुर्सी युल मस्जिदी, वहां अल आए। ओके, ये भी एक और लिख लीजिए, इताअतुल आप तर्जुमा कीजिए। इताअतुल वालिदैन। क्या तर्जुमा करोगे? वालिदैन, वालिदैन की इताअत। वालिदैन की इताअत। वालिदैन की इताअत। अरबी में वालिदैन बोलेंगे। अरबी से उर्दू में आया। हाँ, वालिदैन। ये समझ रहा जी। कुछ समझ में आ रहा? जी जी। अच्छा, ये वालिदैनी जो है मौलाना साहब, ये देखो, ये जमा को बता रहा क्या? नहीं। दो दो दो। दो दो। हाँ। वालिदून नहीं है। तस्निया, ये बताओ जरा, ये तस्निया। बोलिए, तस्निया है, जमा है, वाहिद है। तस्निया। क्या पहचान दिख रही? तस्नीह। या क्या पहचान? या नून। समझ रहे? या नून, लेकिन या तो जमा में भी आता है, जी। या तो जमा में भी आता है, ई या हो नून। जाता, ई हो जाता, फिर ई ना। इधर जेर आता था, ये जी। है ना, या नून, और इससे पहले जेर आया तो वो प्लूरल हो गया, और इससे पहले जबर आया तो ये दैनी। तस्निया। तस्निया। दो समझ रहे? दो माँ बाप। वालिदैन। अच्छा, इसका तर्जुमा आप कीजिए।
इबादुल्लाह अल्लाह का बंदा इबाद प्लूरल, अल्लाह के बंदे लिख लो इसको, इबादुल्लाही अल्लाह के बंदे बंदे। आया, अब देखो अगर ऐसा दिख रहा है आपको, इधर जेर दिख रहा और इधर पेश दिख रहा, आप देखते ही क्या पहचानोगे, मुब्तदा खबर है या मुज़ा मुज़ा? मुज़ा मुज़ा बिल्कुल क्लियर। अब तर्जुमा आप इधर से करोगे या इधर से करोगे? बात से, बात से, हाँ तो कीजिए। अल्लाह के खल्क, खल्क, खल्क को अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की खलकत, अल्लाह की पैदाइश, यानी अल्लाह ने जो पैदा किया है उसको खलकत, तो अल्लाह की खलकत इसका तर्जुमा करेंगे, ये अल्लाह की मखलूक, आसान वर्ड, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की। इसका तर्जुमा कीजिए, सुन्नतुर रसूल क्या तर्जुमा करेंगे? रसूल की सुन्नत, रसूल का तरीका, सुन्नत मीन्स तरीका। उर्दू में वही पढ़ता है, ऐसे भी पढ़ते हैं ना उर्दू में, तरीक़ा रसूल, कौम लूत, कौम हाम, वो जो ए आता है ना उर्दू फारसी तरह की जी, ये क्या है? इंसानी रैब किसको बोलते हैं? शक, शक। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब, रैब फी, रैब मतलब शक, ला का मतलब नहीं, रैब मतलब शक, फी ही उसमें, नहीं है शक, फी ही इसमें, यानी कुरान में, तो रैब का मतलब शक हो गया। अब रैबुल इंसानी क्या इंसानों में शक, इंसानों में शक, इंसान इंसान में शक नहीं, इंसान का शक। देखो सुनो, ये मुज़ा मुज़ाफ इलैह है, आपने काकी की किधर लगाना है? बीच में, तो लगाओ इंसान इंसान का शक, इंसानों का, हाँ, इंसानों का, तो मैं नहीं आया ना, मैं नहीं लगता मुज़ा मुज़ाफ, इंसान का शक, इंसान का शक। जी शुक्रिया। यौमुद्दीन, आखिरत का दीन है। दीन किसको बोलते हैं? दीन एक तरीकों को बोलते हैं, लेकिन यहाँ से ये जब इसको यौम के साथ जोड़ेगा तो इसका मतलब हिसाब, हिसाब का दिन, हिसाब का दिन, यौम मतलब दिन, दिन, द डे ऑफ जजमेंट, जैसे मालिकी यौमिद्दीन, तो यौमुद्दीनी हिसाब का दिन। देखिए दीन सुन्नत माने तरीक़ा, सुन्नत तरीका, दीन मतलब हिसाब, दीन मतलब भी तरीक़ा, अच्छा दीन मतलब भी तरीक़ा, अल्लाह का तरीक़ा है। इमामतुस सलाती, अच्छा इकामतुस सलाती, इकामतुस सलाती, सलात मींस नमाज कायम, नमाज, नमाज, और इकामत मतलब नमाज कायम करना, बुलाना, कायम करना, कायम करना, कायम करना, कायम करना मतलब पढ़ना, हाफिज करना, पढ़ना, नाफिज करना, माहौल बनाना। माहौल, इकामत मतलब माहौल बनाना, नाफिज करना, तो नमाज को कायम करना। इसी अभी देखो यहाँ पर अदा उस सलाती नहीं आया कुरान में कि नमाज को अदा करना, अदा इंसान अकेला करता है, तो नमाज को कायम करना मतलब माहौल बनाना, इसलिए खुद का भी दूसरों का भी, नमाज का माहौल बना। क्लास शुरू होके 40 मिनट 38 हो रहे हैं। बाकी सब ठीक है आप लोगों का, थोड़ा सा वो अटैच प्रोनाउन वापस से अच्छे से याद अच्छे याद करना। अटैच प्रोनाउन, हाँ मेरा तो बहुत ही हो गया।
अटैच प्रोनाउन को अटैच कर करके याद करना पड़ेगा. वो जो चार्ज दिया था ना उसी के ऊपर मीन इलाज सबसे ज्यादा. ठीक है. अभी आप एक नया लेसन लगाइए और उसका नाम लिखिए वर्ब. वर्ब फेल. वर्ब वर्ब है. इसको बोलते हैं फैल. और फैल मतलब वर्ब. लेकिन अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ कौन सा फैल पढ़ा? कौन से जमाने का? पास्ट पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? तो मैं पढ़ा रहा हूँ माजी यानी पास्ट. फेल माजी. पहले माजी पढ़ा रहा हूँ. क्या पढ़ा रहा हूँ? पास्ट. पास्ट टेंस. उसको माजी बोलते हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं आप गुजरा हुआ जमाना. पास्ट. ठीक है. वर्ब्स भी पास्ट में से होते हैं. वर्ब्स भी पास्ट होता है. हाँ. इंग्लिश में नहीं होता. पास्ट वर्ब पास्ट वो तो वर्ब टेंसेस में होता है ना पास्ट. वही तो वही बात है, वही हो रहा. पास्ट वर्ब. कोई भी वर्ब, अब वो वर्ब या तो पास्ट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा या फ्यूचर रहेगा. कोई भी वर्ब या तो पास्ट रहेगा या उसी या पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर. इसी को टेंस बोलते हैं. वॉज प्लेइंग. समझ. इसी को मतलब इसी काम को- किसी न किसी जमाने में ही होगा. कर रहा था. हाँ. अभी गुजरा देखो हुआ. वो बोले तो काम. या करेगा. अब वो बोले तो काम. अब काम हुआ तो पास्ट हो गया, पास्ट टेंस हो गया. हो रहा है. काम हो रहा है प्रेजेंट हो गया. काम होगा फ्यूचर हो गया. ठीक है. इंग्लिश में जैसे वर्ब की चार टाइप रहती है. हाँ, V1 V2. पास्ट का नहीं, पास्ट सिंपल, हाँ. पास्ट Continuous. कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू. पास्ट के 4 हो गया. यहाँ इतना झमेला नहीं है. ठीक है. अरबी में उर्दू में तो 6 है. वो है, ठीक है, हाँ, वो अच्छा है, है. लेकिन हम यहाँ अच्छा है. हाँ यहाँ हम नहीं बताएंगे. ठीक है. तो उसमें उलझाएंगे. सिर्फ पास्ट टेंस इतना याद रखो. बाकी चीज अपने आप समझा दो. ठीक है. वैसे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इंग्लिश में 4 रहता ना, अरबिक में 6 रहता. लेकिन हमने उसको उसमें उलझना नहीं है. एक ही सीखो सब आ जाएगा. प्रेजेंट भी फिर 4 रहता है, फ्यूचर भी फिर 4 रहता है. अरबिक में प्रेजेंट एक ही तरीका है और फ्यूचर का प्रेजेंट, और खास बात प्रेजेंट फ्यूचर का एक ही तरीका. ओह क्या बात है. फ्यूचर का अलग से नहीं है कुछ भी. वो हिंदी में भी होते 3. अपूर्ण, पूर्ण और हाँ. सामान्य. ठीक है. तो ये अब जब आप वर्ब में आ गए तो वर्ब का सेंटेंस रहने दो या आप नाउन वाला रहने दो, उसके 2 कैटेगरी जरूर रहती है. या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव. यानी उसमें अगर या तो इनकार होगा या इकरार होगा. समझ रहे? तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं. तो वो इसके साथ सीखते चले जाओगे. आप सिर्फ एक पॉजिटिव सीखो. अभी हम पॉजिटिव पढ़ो. उसको नेगेटिव कैसे बनाना? सिंपल तरीका. चलिए. मुस्बत. तो आप पहले जैसे अटैच प्रोनाउन के अंदर टेबल बनाए थे वैसे 3 टेबल बनाए. 3 टेबल बना करके यहाँ पर आप लिखेंगे गायब. यहाँ पर आप बनाएंगे हाजिर. और यहाँ पर आप बनाएंगे मुतकल्लिम. ठीक है. अभी हम सिर्फ गायब पढ़ेंगे. हम सिर्फ गायब पड़े. गायब ही पढ़ेंगे ताकि ज्यादा लोड ना हो. जल्दी से लिखिए. इसमें भी आदमी के लिए और औरत के लिए अलग अलग रहता है. मेल और फीमेल. मुतकल्लिम. मुतकल्लिम. 3rd पर्सन, 2nd पर्सन और 1st पर्सन. वैसे लिख लो तुम 3rd पर्सन. चलिए स्टार्ट करते हैं. फ़अला. उसने किया. ये देखो पहला सीगा बनाने का तरीका इधर देखिए.
पहला सीगा बनाने का तरीका दोनों पर, तीनों पर जबर दे दो, तीनों पर जबर इधर जबर, इधर भी जबर। ये बीच वाला जो हरफ है ना, ये चेंज होगा। अच्छा इसको बोलते फा कलमा, इसको बोलते ऐन कलमा, इसको बोलते लाम लाम कलमा। कलमा। तो फा कलमा और लाम कलमा जबर है, इधर जबर, ठीक है। अब ये हरफ चेंज होगा, कभी फाइला आएगा, कभी फाउला आएगा, और फाला तो है ही, यानी जबर जेर पेश के साथ आ सकता है, ठीक है। वो क्या है वो आगे पढ़ेंगे, अभी आप इतने फाला, इसका मतलब है उसने किया। लिखिए फाला, उसने किया, उसने किया, उसने मर्द ने, उसने किया। अब देखो उसने किया, ये पास्ट है ना, उसने किया पास्ट है ना, उस एक मर्द ने यहाँ पे। ओके, फिर आप लिखिए, अब देखो क्या बनाते हैं, इधर देखिए ध्यान से, अलिफ लगा दो, फ़अला, अलिफ लगा दो, फ़अला, उन दो आदमियों ने किया। ये तस्निया है। ये तस्निया हो गया, यानी दो डबल के लिए। अच्छा अब देखिए फ़अलू, प्लूरल के लिए वाव, वाव नून नहीं है, वाव सिर्फ, इसके साथ ऐसे ही अलिफ लिखा हुआ रहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन लिखा हुआ जरूर रहता है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उन सब के साथ के उन सब ने किया, क्या ने किया, उन सब ने किया। अब इसको बोलिए फ़अला, फ़अला, फ़अलू, बोलिए फ़अला, फ़अला, फ़अलू, बोलिए फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अला, फ़अलू। अब सुनिए, क़तला, क़तला मतलब कत्ल किया, क़तला मतलब क्या हुआ, क़तला का मतलब क्या हुआ, मारा, कत्ल किया। किसने, एक इंसान, एक आदमी ने। उसने बोलो, उसने। थर्ड पर्सन, उसने मारा, कत्ल उसने कत्ल किया। ये यहाँ सेकंड पर्सन आएगा, यहाँ फर्स्ट पर्सन आएगा, उसने बोलो, उसने उसने कत्ल कत्ल किया। किया। और ज़लमा क्या बोलोगे, उसने जुल्म किया। सजदा, उसने सजदा किया। अबदा, उसने इबादत उसने किया। इबादत किया। ठीक है। और मिलते जुलते वर्ड बहुत सारे हैं, कसब नहीं वो तो डिफिकल्ट जाएगा। करा, करा, पढ़ा, उसने पढ़ा। उसने पढ़ा, किरात, करा, ठीक है। सो अब ये अलिफ लगा तो दो बन गए, हाँ। उन दोनों ने किया, और वाव लगा तो उन सब ने किया। जब वाव लगा तो जाहिर है उससे पहले पेश जरूरी, जी, अलिफ लगा तो उससे पहले जबर जरूरी। जी। अब यहाँ पे पेश आ गया लाम के ऊपर, क्योंकि वाव आ गया इसलिए। तो फ़अला, फ़अला, फ़अलू, बोलिए फ़अला, फ़अलू, एक एक करके। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अला, फ़अला, फ़अलू। भूलेंगे नहीं ना, वो याद करो, चच्चा खाला खालू, याद रहता। एकदम खाना खा गया फ़अलती, फीमेल के लिए फ़अलत, फ़अलत, ये देखो ता पे उस औरत ने किया, फ़अलत, अच्छा। ता पे जज़म, उस औरत ने किया, लत, फ़अलत। अब सुनिए, इधर देखिए, जी, इधर तस्निया आएगा ना, भी तस्निया आएगा, जी। तो तस्निया के लिए क्या रूल है, फ़अलता, फ़अलता, तो ता क्या गया, नहीं अलिफ है ना तस्निया के लिए, डबल के लिए, दो आदमियों के लिए क्या लगाया हमने, अलिफ लगा। अलिफ। तो यहाँ ये तो ता तो फीमेल की पहचान है, ता तो फीमेल की पहचान है। अब इन दो फीमेल बनाना है, उन दो औरतों ने किया, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, फ़अलता, ता, अलिफ, फ़अलता, फ़अलता, क्या लिखिए, फ़अलता। फ़अलता,
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे फर्क है, ये वाव नहीं आएगा इधर। अच्छा इधर देखिए, सुनिए, ये यहाँ पे वाव है, उन सब आदमियों ने किया। तो यहाँ पे जैसे अलिफ यहाँ पे आया, अलिफ इधर भी लगा दिया। तस्निया सेम सेम हो गया ना, तस्निया सेम सेम। नीचे ये प्लूरल सेम सेम नहीं होगा, आदमियों के लिए वो सेम सेम नहीं होगा। ये आप जमीर बोलिए हुआ से, हुआ, हुमा, हुम, हाँ इधर वाला, हिया, हाँ हुमा, हुन्ना, हुन्ना, हुन्ना में जो नून है ना वो लगा दो इधर। फ़अलना फ़अलना, फ़अलना। अब इधर देखिए, ये छठा सीगा है फीमेल के लिए। ये 3 आदमियों के लिए, 3 औरतों के लिए, तो ये छठे नंबर पे आया। कौन सी लाइन है ये? गायब थर्ड पर्सन का छठा नंबर का सीगा, उसका लाम देखिए, उसका 1 2 तीसरा हरफ देखिए क्या आया, चेंज हो गया, जज्म है। जज़म आया ना। अब लास्ट तक जज़म आएगा ये हरफ पे, अच्छा यहाँ हाजिर में, तक मुतकल्लिम में सब में, हाजिर मुतकल्लिम, इस्लाम को जज़म ही आएगा। मुतकल्लिम के 2 वहाँ भी जज़म ही आएगा ये लाम। यानी फेल के अंदर तीनों जगह पर जो ये आएगा, एक ही पहले माजी में, ठीक है। अब इसको याद करिए, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, बोलिए, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। बोलिए वापस, फ़अलत फ़अलता फ़अलना। फ़अलत फ़अलता फ़अलना। फ़अलत फ़अलता फ़अलना। फ़अलत, फ़अलता, फ़अलन, फ़अलना, लाम पे जज़म किसने बोला है, इसको मैंने क्लियर किया। फ़अल ना, जी। अब आप क़तला से करो, कतला, कतला, उधर उधर आदमी कतला, 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 कतलू, कतलता, कतलता, नहीं, देखो देखो देखो, कतलत, हाँ कतल, कतलता, कतल, कतलाता, हाँ कतलता, कतलता, हाँ कतलन्ना, क़तलना। कतलना, क़तलना। ज़लमा से करो, ज़लम, ज़लमा, ज़लमा, ज़लमू। नहीं इसको क्लियर करो, वापस बोलता। हाँ ज़लमा, 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 हाँ ज़लमू। हाँ, ये इसको खींचोगे ना तब समझेगा। ज़लमू बोले तो एक पेश हुआ, ज़लमू, ये ज़लमा ऐसे थोड़ा खींच लेगा तो समझेगा। ज़लमा, ज़लमा सही है। हम्म ज़लमा, ज़लमा, ज़लमू। ज़ ज़ल 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 जअलत देखो, ज़लमत, ज़लम, ज़लमत, ज़लमत, इस पे ता पे जज़म, ज़लमत। ज़लमत, ज़लता, ज़लमता। ये इधर देख के बोलो, देखो पहला हर्फ क्या है, फ, फ, नहीं नहीं ज़, अभी जो बोल रहे हैं, उस हुरूफ को फिर दूसरा करो। क्या है, ल, 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 तीसरा क्या है, म, 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 ता, तो ज़लम, फिर ता, ता, इसको देख के बोलो। फिर ज़लना, ज़ के बाद ल है, ज़लम, ज़लन, ज़लम। ज़लम, लम, ज़लम, ज़लम। जज़म है इधर, जी गुलाम, ज़लम ना, ना, ना ज़लमना, ज़लमना, ठीक है। आप सजदा से बोलो, हाँ सजद, सजदा सजदा, सजदा सजदू फ़अल सजदत सजदता सजदना। बहुत अच्छा। अब अबदा, उसने इबादत किया, उससे बोलिए, अबदा, अबदा, अबदू, अबदत, अबदत, अबदता, अबदना, अबदना। अबदना। बहुत अच्छा। और कौन बच गया, आप पढ़िए। आप करेंगे हसबा, उसने हिसाब किया। हसब हसबा हसबू हसबत हसबता हसबना हसब, हसबता हाँ। हसबना हसबना। आप करेंगे करमा, उसने करम किया। करम, करमा, करमू, करमत, 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 करमता,
अकरमता करमता ये देखने का सब हाँ जबर से करमता करमता करम करम मन करम 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 न तो आप वो हरफ ऐसा लिख लेने का समझो कौन सा हरफ है तो उस हरफ पे इधर जो जज़म है यहाँ पे जो भी आएगा उसको जज़म दे दो फिट कर दो ये टेम्पलेट है, इसी के ऊपर बिठाते जाना है। अबे देखो होटापा करो होटापा वड़ापा करो वड़ापा वड़ा पाव वाड़ा वड़ापा तीन आने वड़ापा वड़ा पाव वड़ा वड़ा पाव वड़ापत वड़ापता हाँ। वड़ापन वड़पना भड़कना मतलब साउथ इंडियन में अरे ये तो मतलब कुछ समझे। नहीं है वही तो वैसे ऐसा वर्ड अरबी में कैसा पा आएगा ही नहीं ना अरबी में पहली बात तो एक ये हो गया मजाकिया तौर पे बनाना है वो टेम्पलेट उसी पे बिठा देना कुछ भी। ये जैसे वो हुआ है वैसे ही है ठीक है इसको अच्छे से याद कीजिए इतना ही जी। रखिए अब इसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ वर्ड्स देता हूँ फट से लिख लीजिए जो जो वर्ड आपने बोला है आबादा उसने इबादत किया ठीक है और सजदा सजदा उसने सजदा किया कतला उसने कत्ल किया ज़लमा उसने जुल्म किया और नसरा उसने मदद किया। अब पहला वर्ड आपको दिया मैंने यानी ये जो एक फॉर्मेट बनाया ना उसका पहला वर्ड मैंने बना के दे दिया नसरा उसने मदद किया आगे की आपने बनाना है समझ रहे ये कितने वर्ड है 5 वर्ड जी अब 5 से प्रैक्टिस कीजिए ना 5 के ऐसे आना चलिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।